Hello students, how are you all? Now today we are going to start chapter 4, How the Traders Became Rulers. So open your textbook on page number 90. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. On reading this story, Jay and Mitali were making fun of each other. Their class teacher, who was sitting beside them, said, "Children, this too is a policy. The third party takes advantage of a quarrel between the two." तो रिसेस में बच्चे दो बिल्ली और बंदर की कहानी पढ़ रहे थे। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जय और मिताली एक दूसरे का मजाक बनाने लगे। उनके क्लास टीचर उनके पास खड़ी थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, ये भी एक तरह की नीति पॉलिसी है। जो तीसरी पार्टी है, वो दो लोग के बीच अगर झगड़ा हो रहा है तो वो तीसरी पार्टी उसका फ़ायदा उठा लेती है। The Britishers had expanded their empire in India with such a policy. Jay asked, "Sir, how is that possible?" The class teacher replied, "Let us go to class, and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians." तो ये जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में आए, उन्होंने अपना एम्पायर को इसी पॉलिसी से फैलाया। जय ने सर से पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? उस पर जो सर ने कहा कि चलो हम क्लास में जाकर वहाँ बताता हूँ कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आए और किस तरह इंडियंस के ऊपर रूल करना शुरू किया। By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. Do you know that the British came to India only for trade? Initially, they took permission to trade in Indian states. Then how did they become the rulers of entire India? The history of the British rule arouses many such questions. To serve their economic interest, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. तो 18th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिशर्स ने अपना पावर बढ़ा दिया और ख़ास तौर पे इंडियन पॉलिटिक्स में ताकतवर हो चुके थे। वो हमारे यहाँ खाली बिजनेस करने आए थे। शुरू में उन्होंने सिर्फ बिजनेस की ही परमिशन मांगी थी कि हम इंडियन स्टेट्स में बिजनेस करना चाहते हैं। तो फिर बाद में एकदम से पूरे इंडिया में रूल कैसे करना शुरू कर दिया। एक तरह से ये ब्रिटिश रूल जो रहा, वो हिस्ट्री बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अपने को आर्थिक तौर पे फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंडिया में अपना पॉलिटिकल होल्ड बढ़ाना शुरू किया और ख़ास तौर पे ब्रिटिश की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी नीतियाँ थी, जो टैक्टिक्स थी, जो उनकी चाल थी, वो उन्होंने अपनाई। वेलेस्ली's policy of expansion. When Wellesley came to India as the Governor General, cutthroat competition existed between England and France. It was necessary to check France from becoming powerful in India. So as to expand the British rule in India, Wellesley introduced a new plan, which was known as the Subsidiary Alliance. As per the scheme, any princely state that accepted the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. This way, the British could maintain their army without spending any money. तो जब वेलेस्ली इंडिया आए गवर्नर जनरल के तौर पर, उस टाइम पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बहुत तगड़ा कंपटीशन था। कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। बहुत ज़रूरी था कि फ्रांस जो है, जो अपनी ताकत इंडिया में बढ़ाना जा रहा था, उसे रोका जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका रूल ज़्यादा फैले। तो इस वजह से वेलेस्ली जो थे, उन्होंने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस।
इनकी प्लान के अनुसार कोई भी शाही स्टेट, प्रिंसली स्टेट यानी कोई भी शाही स्टेट है, अगर वो उनकी अलायंस को मंजूर करता है तो सबसे पहले ब्रिटिशर की आर्मी को अपने यहाँ रखना होगा, उन्हें मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को रॉयल कोर्ट में भी रखना होगा। इस तरह ब्रिटिश अपनी आर्मी को आराम से मेंटेन कर सकते थे, किसी भी खर्च के बिना। However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. This system, which made many feel secure in the beginning, made them feel enslaved and threatened. Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely states of India. The Indian states that became the victims of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwad of Vadodara, Peshwas of Pune and Sindhyas of Gwalior. तो ये स्टेट्स जो उनकी आर्मी को रखते थे, उस आर्मी का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कहीं नहीं कर सकते। शुरू में बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको लगा कि वो काफ़ी सुरक्षित हो गए। बाद में उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने गुलाम बना दिया है, कब्ज़ा कर लिया है और डर भी लगने लगा। ये सब्सिडरी अलायंस एक तरह से धीमा जहर का काम कर रहा था। जो भी प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के लिए, उनके लिए इतने सारे जो इंडियन स्टेट्स थे वो सब के सब ये सब्सिडरी अलायंस के शिकार बन गए। सबको अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। जो आर्मी थी अपने पास रखी थी, जो रिप्रेजेंटेटिव था वो रॉयल कोर्ट में प्रेजेंट था। नाउ टर्न योर पेज नंबर 20. Nizam of Hyderabad was the first victim of Wellesley's subsidiary alliance. Then it was Mysore and Ayodhya. Tanjore and Karnataka met with the same fate. The British made the Marathas fight among themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance. ये स्टेट्स सबसे पहले जो सब्सिडरी अलायंस के जो शिकार बने वो थे हैदराबाद के निज़ाम, उसके बाद मैसूर और अयोध्या की बारी आई। तांजोर और कर्नाटका के साथ भी यही हुआ। ब्रिटिशर्स ने यह चाल चली कि मराठास को आपस में लड़वा दिया और फिर उसके बाद उसको कहा कि तुम्हें अब सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary state. Maratha chiefs fought among themselves after the death of Nana Fadnavis. One by one, all the Maratha states became the victim of divide and rule policy of the British. निज़ाम की जो मराठास के साथ लड़ाई हुई उसमें उनका भारी नुकसान हुआ। तो पहले वो बने जिसने एलायंस को एक्सेप्ट किया। टीपू सुल्तान ने करने से मना कर दिया, लेकिन जब ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, तब मैसूर को मजबूरी में सब्सिडरी स्टेट के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ा। नाना फडणवीस के डेथ के बाद जो मराठा चीफ थे वो आपस में ही लड़ने लगे और एक एक करके सारे के सारे मराठा स्टेट थे वो ब्रिटिशर्स की डिवाइड और रूल पॉलिसी के शिकार हो गए। The other states, namely Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, Farrukhabad, also suffered the same fate. In this way, within a span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made British the supreme power in India. तो यही हाल बाकी का स्टेट का भी हुआ। ये 7 साल के दौरान
वेलेस्ली ने कंपनी रूल को खूब बढ़ा दिया और ब्रिटिश सुप्रीम पावर बन गए इंडिया में। एक्सपांसन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विथ मैसूर, Nizam of Hyderabad and Maratha chieftain, the British moved towards northern part of India. They entered into a treaty of friendship with Nepal, sensing a threat from it. They fought many battles to secure the frontiers. तो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी उन्होंने मैसूर में निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चिफ्टेन के साथ कर ली। उसके बाद नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ मूव करने लगे। उन्होंने एक संधि कर ली नेपाल के साथ, क्योंकि उन्हें नेपाल से डर था। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी ताकि अपनी जो बाउंड्रीज़ है उन्हें सुरक्षित किया जा सके। फ्रेंडली रिलेशंस विद द सिख किंग महाराजा रणजीत सिंह helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in Sindh. The British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. सिख के राजा महाराजा रंजीत सिंह के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशन थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मदद मिली अफ़गान के साथ लड़ाई जीतने में, और फिर उनका जो रूल था वो सिंध में एस्टेब्लिश कर दिया। ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा चाहत थी कि किसी तरह से वो सिख किंगडम पे भी अपना कब्ज़ा कर ले, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम था, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक ये पॉसिबल नहीं था। नाउ पेज नंबर 21. So they kept friendly relation with Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was a strong ruler of that time. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. He had attained victories over many nearby states. After his death, Punjab suffered anarchy. Governor General Sir Henry Hardinge came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation. और इसी वजह से महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो रिलेशन थे वो फ्रेंडली रखे। रंजीत सिंह एक ताकतवर रूलर थे। इन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स के साथ में मिलकर एक बहुत ही पावरफुल सेना तैयार की थी ताकि उनका राज्य पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। आसपास के राज्यों पे जीत हासिल की, पर जब राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई उसके बाद पंजाब के ऊपर मुसीबत आ गई। गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग इंडिया आए और उन्होंने पूरा सिख रूल था उसे ब्रिटिश रूल के अंडर कर दिया, और जो पॉलिसी अपनाई थी वो दखल देने वाली थी और कब्ज़ा करने वाली थी। So students, now rest of the chapter will continue in the next video.